Good morning, dear students. Today we are going to discuss with the topic that is application of genetics in nursing. This topic is given in your unit first. Okay, first topic, that is application of genetics in nursing. So that means how genetics are applied in the nursing field. Okay, in your second year you are studying the subject genetics. Okay, in your nursing profession you are studying the subject genetics. So how this genetics is playing important role, it is playing an important role or a very crucial role in the nursing field, that we are going to study, from where this genetics has been originated in nursing. Okay, so let's start. First of all, you have to know what is the definition of genetics. Okay, what is genetics? So according to author S.S. Randhawa, the science that deals with the study of heredity and variations is known as genetics. Okay, so what is the definition of genetics? Genetics means it is the science, it is the medical science that deals with the study of heredity and variations. Heredity, that means inheritance of traits from one generation to another. That means heredity क्या होता है? Characteristics और traits, ठीक है, जो आप inherit करते हैं, ठीक है, जो आपको मिलता है from your ancestors और from your पेरेंट्स. ओके, सो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स या ट्रेट्स जो पास होते हैं, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी. एंड वेरिएशंस, दैट मीन्स डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम पेरेंट्स और अ स्पीसीज. ठीक, जो भी कैरेक्टर्स आपको आपके पेरेंट्स के द्वारा मिला हुआ है, ठीक है, उसके अलावा आप में जो भी वेरिएशंस आए हैं, जो भी आप में चेंजेस हैं अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में, ठीक, और एज अ स्पीशीज़, ठीक है, किसी भी तरह का जो भी डिफरेंसेस आप में आया है, दैट इज नोन एज द वेरिएशंस. जो भी डिफरेंसेस है, जो भी चेंजेस आए हैं. ओके, सो दिस इज नोन एज जेनेटिक्स. सो व्हाट इज जेनेटिक्स? द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस. जेनेटिक्स में हम किसका स्टडी करते हैं? हेरिडिटी का एंड वेरिएशंस का. Okay, next definition is genetics is the branch of science that studies or deals with the structure and behavior of the gene. That means genetics क्या है? एक ऐसा ब्रांच है, ठीक है, एक ऐसा ब्रांच है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम किसका स्टडीज़ करते हैं? स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द जीन. ओके, जेनेटिक्स में मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? जीन. ठीक है, स्टडी ऑफ जीन. तो जीन का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह का स्ट्रक्चर है जीन का, सारे इंडिविजुअल्स में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बिहेवियर कैसा होता है जीन का, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं किसमें? जेनेटिक्स में. ओके, सो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स. नेक्स्ट, in the application of genetics in nursing are as follows. So in the application of genetics in nursing, these are the things which we are going to study. First is the scope. So what is the scope of genetic in nursing, that we are going to study. Next, the historical milestones in genetics nursing practice. So what are the history? What is the history of origin of genetic nursing, that we are going to study. नेक्स्ट, रोल ऑफ नर्सेस इन जेनेटिक्स. नर्सेस का क्या रोल होता है जेनेटिक्स में? ओके, जेनेटिक फील्ड में या जेनेटिक नर्सिंग में नर्सेस का क्या रोल है, वो हम स्टडी करेंगे. नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स इन नर्सिंग एजुकेशन. ओके, सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग जेनेटिक्स इन नर्सिंग एजुकेशन. ओके, दैट वी आर गोइंग टू डील. नेक्स्ट, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ जेनेटिक्स इन नर्सिंग. ओके, सो फ्यूचर में जेनेटिक नर्सिंग का या जेनेटिक नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, फ्यूचर में क्या रोल प्ले करेगा, ठीक है, जेनेटिक्स इन नर्सिंग, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू डील विद द scope of genetics in nursing and historical milestones in genetic nursing practice. These two topics today we are going to deal. So let's start. First is scope. Okay, scope of genetic in nursing. So what is the scope? Scope क्या है genetics का, nursing में क्या scope है? Okay, first is nearly all diseases are now recognized to have a genetic component. ठीक, दैट मीन्स जितने भी डिसीजेस
ठीक है, जितने भी डिसीजेस हैं उनमें से आधे डिसीजेस जो हैं वो रिकॉग्नाइज किए गए हैं कि किस वजह से होते हैं, जेनेटिक कंपोनेंट, दैट मीन्स कुछ ना कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के वजह से या जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स के वजह से या जीन में म्यूटेशंस की वजह से क्या होते हैं, जो भी डिसीजेस हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं जेनेटिक्स या जीन रेस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो ये जो डाटा मिला है, ठीक, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो जेनेटिक्स का स्कोप है वो इंक्रीज़ हो रहा है कोई भी डिसीजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, कोई भी डिसीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए जेनेटिक्स का स्टडी करना या जेनेटिक्स फील्ड का स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, द पास्ट सेवरल ईयर्स हैव ट्रांसफॉर्म जेनेटिक नर्सिंग प्रैक्टिस फ्रॉम अ नियरली हिडन स्पेशलिटी टू अ रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग स्पेशलिटी। दैट मीन्स सेवरल ईयर्स, पास्ट सेवरल ईयर, दैट मीन्स बहुत सालों से क्या हो रहा है, जेनेटिक नर्सिंग प्रैक्टिस जो है वो छुपा हुआ है। ठीक है, वो हिडन था। ठीक, ये जो स्पेशलिटी है, ठीक, नर्सिंग क्या है, एक प्रोफेशन है। ठीक है, एक प्रोफेशन है। सो नर्सिंग में जेनेटिक नर्सिंग जो है वो क्या था, वो हिडन था। ठीक, बहुत सालों तक क्या हुआ, ये छुपा हुआ रहा। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस, ये जो स्पेशलिटी है ये इतना उभर कर सामने नहीं आ पाया। ठीक है, टू अ रिकॉग्नाइज नर्सिंग स्पेशलिटी, दैट मीन्स इसको उतना ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला इन द नर्सिंग फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट, द नर्सिंग फील्ड हैज़ बीन अ विजिबल कंट्रीब्यूशन टू द जेनेटिक एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। नर्सिंग फील्ड जो है आज के डेट में, नर्सिंग फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है। ठीक है, एवरी सेक्टर, एवरी फील्ड नीड्स अ नर्सिंग प्रोफेशनल। ओके, हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में, ठीक है, नर्सिंग प्रोफेशनल्स का बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है। ठीक, तो इसी तरह से जेनेटिक फील्ड में भी क्या हुआ कि जेनेटिक नर्सिंग का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, वो भी क्या हुआ, वो भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो इसका जेनेटिक नर्सिंग का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है। ठीक, क्योंकि क्या हो रहा है, जेनेटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन दी ओवरऑल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड फैमिलीज। ठीक, एक फैमिली का ओवरऑल हेल्थ आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट मीन्स उस फैमिली में किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर पहले ही आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें वो डिसीजेस ट्रांसमिट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले ही ये सारी चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन हो जाना चाहिए, इसलिए इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक्स का स्टडी। ठीक है, और मेनली नर्सिंग में, इन दी नर्सिंग फील्ड जेनेटिक्स का स्टडी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नर्सेज ही है वो जो क्या कर रही है, ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल एंड फैमिलीज़ का क्या कर रही है, वो केयर कर रही है। सारा जो इंडिविजुअल या ओवरऑल हेल्थ जो है वो नर्सेज प्रोवाइड कर रही है। तो नर्सिंग फील्ड में भी जेनेटिक्स का नॉलेज होना, नर्सेज को जेनेटिक्स का नॉलेज होना भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो फैमिलीज़ को जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड कर सके, ताकि वो प्रिवेंट हो सके फर्दर एनी काइंड ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर। Next, all areas of nursing practice have been influenced by recent advances in genetic knowledge and technology। ठीक है, तो जितने भी नर्सिंग प्रैक्टिसेस है, जितने भी एरियाज़ है नर्सिंग प्रैक्टिस के, वो क्या हुए, वो रिसेंटली अभी इन्फ्लुएंस्ड हुए, आइडेंटिफाई हुआ है कि जेनेटिक नॉलेज, जो भी जेनेटिक नॉलेज है और जो भी जेनेटिक्स टेक्नोलॉजीज जो डेवलप हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना, नर्सिंग में इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें क्या हुआ, आइडेंटिफाई हुआ है। नेक्स्ट इज, नर्सेज नाउ प्रोवाइड एजुकेशन टू पेशेंट्स अबाउट हेरिडिटी रिस्क फॉर डेवलपिंग डिसीज। तो अभी क्या हो रहा है, नर्सेज ओवरऑल हेल्थ प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, फिजिकली, मेंटली, सोशली। ठीक है, तो ओवरऑल हेल्थ जो है वो नर्सेज प्रोवाइड कर रही है। तो इसलिए नर्सेज क्या है, अभी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है पेशेंट्स को अबाउट द हेरिडिटी रिस्क, मीन्स जो भी कैरेक्टर, जो भी ट्रेट्स या जो भी डिसीजेस उनके उनके एंसेस्टर से या उनके पेरेंट्स से जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो रही है, उसमें अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ मेलाइटस भी एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर किसी पेरेंट्स को या उनके ग्रैंड पेरेंट्स को या उनके फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी डायबिटीज़ मेलाइटस था, तो वो ट्रांसमिट हो सकता है उनकी नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, या फिर सिकलिन भी क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है।
है ना। अगर किसी पेरेंट्स को सिकलीन है तो उनके चिल्ड्रंस में सिकलीन का प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ों का क्या हो रहा है, नर्सेज जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है पेशेंट्स को अबाउट द हेरिडिटी रिस्क, मतलब जो भी डिसीजेस है वो फैमिली मेम्बर से या पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो सकती है और एक डिसीज़ क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। तो इसको पहले से ही प्रिवेंट करने के लिए नर्सेज जो है वो प्रॉपर एजुकेशन एंड काउंसलिंग प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट, ऑल्सो काउंसिल अबाउट द बेनिफिट्स एंड रिस्क एसोसिएटेड विद जेनेटिक टेस्टिंग एंड मैनेज डिसीज रिस्क बेस्ड ऑन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक। नर्सेज जो है जेनेटिक काउंसलिंग में भी एक रोल प्ले कर रही है। ओके, जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो नर्सिंग फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। जेनेटिक काउंसलिंग से जो भी बेनिफिट्स है या जो भी रिस्क है, ठीक है, जेनेटिक टेस्टिंग का भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, तो जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में जो भी बेनिफिट्स है या जो भी रिस्क है वो पेशेंट्स को या फैमिली मेम्बर्स को काउंसलिंग के थ्रू बताया जा रहा है, या जो भी डिसीजेस है या जो भी डिसीजेस के रिस्क है इन फ्यूचर उसको मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। ओवरऑल जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस है वो जेनेटिक नर्सिंग के थ्रू पेशेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स के पास तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। द रीसेंट डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल टेस्टिंग फॉर ससेप्टिबिलिटी जीन्स has had a great impact on nursing role in the identification and management of individuals at risk for developing many diseases. That means अभी जो भी recent development हुए हैं, ठीक है, जेनेटिक टेस्टिंग्स के ऊपर जो भी कमर्शियल टेस्टिंग्स है, जेनेटिक टेस्टिंग्स के ऊपर जो भी recent डेवलपमेंट या रिसर्चेस हुए हैं, ठीक है, उसमें ये पाया गया है कि कुछ ससेप्टेबल जीन्स, दैट मीन्स कुछ ऐसे जीन्स, पर्टिकुलर जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर कॉजिंग द कैंसर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जो जीन के वजह से कॉज होते हैं, ठीक है। अगर जीन में किसी तरह का चेंजेस हो गया है या म्यूटेशन हो गया है जीन में, तो उस वजह से क्या हो रहा है, कैंसर कॉज हो रहा है, ठीक है। और जीन्स जो कैंसर कॉज करते हैं उन जीन्स को हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन्स, ओके। सो द कैंसर कॉजिंग जीन्स आर नोन एज ऑन्कोजीन्स, ओके। फॉर एग्जांपल जीन्स ऑफ कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एक्सेट्रा। तो जो पर्टिकुलर जीन रेस्पॉन्सिबल है किसी पर्टिकुलर कैंसर को कॉज करने के लिए, जैसे कोलोन कैंसर कॉज करने के लिए एक पर्टिकुलर जीन रेस्पॉन्सिबल होता है, ब्रेस्ट कैंसर कॉज करने के लिए वन पर्टिकुलर जीन रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। तो ये जो सारे जीन्स का क्या हो रहा है, थ्रू कमर्शियल टेस्टिंग्स या जेनेटिक टेस्टिंग्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन सा ऐसा जीन है जो रेस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलर डिसीज़ या कैंसर को कॉज करने के लिए। ओके, सो हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन नर्सिंग रोल, ठीक। तो इस तरह का स्टडीज़ जो है वो नर्सिंग प्रोफेशन में भी, नर्सिंग में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक, ताकि आइडेंटिफाई कर सके जो भी जीन रेस्पॉन्सिबल है और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट दे सके हम पेशेंट्स को या इंडिविजुअल्स को, ताकि वो प्रिवेंट हो सके फॉर फर्दर डेवलपिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ द डिसीजेस, ताकि इन फ्यूचर उनको किसी भी तरह का कोई कैंसर या कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स या डिसीजेस से पेशेंट्स को हम प्रिवेंट कर सकें। ओके, नेक्स्ट, दीज डेवलपमेंट्स हैव लेड टू ट्रेमेंडस चेंजेस इन जेनेटिक नर्सिंग प्रैक्टिस। जो भी ये डेवलपमेंट जेनेटिक्स में जो भी डेवलपमेंट्स आए, स्पेशली इन दी जेनेटिक नर्सिंग फील्ड में जो डेवलपमेंट्स आए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ट्रेमेंडस रोल प्ले कर रहे हैं किसमें, जेनेटिक नर्सिंग प्रैक्टिस में। दैट मीन्स जेनेटिक नर्सिंग प्रैक्टिस एक प्रोफेशनल फील्ड बन चुका है। ओके, जैसे नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स अभी रिसेंट में डेवलपमेंट हुए हैं नर्स प्रैक्टिशनर कोर्सेज में, ठीक है, उसी तरह से जेनेटिक नर्सिंग प्रैक्टिस भी एक तरह का प्रोफेशन बन चुका है, ठीक है, एक कोर्स बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी चेंजेस या डेवलपमेंट आया जेनेटिक नर्सिंग में, ये चेंजेस लाने में या ये हेल्पफुल हुआ किसमें, जेनेटिक नर्सिंग प्रैक्टिस में। नेक्स्ट इज, सो ऑल दी स्कोप्स ऑफ जेनेटिक इन नर्सिंग, जितने भी हमने पढ़े कि क्या क्या स्कोप है जेनेटिक नर्सिंग में, जेनेटिक्स को हम क्यों स्टडी करते हैं नर्सिंग फील्ड में, क्या इसका स्कोप है, हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े उससे हमको एक रिजल्ट मिला, एंड दैट रिजल्ट इज दस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द स्कोप ऑफ जेनेटिक नॉलेज एप्लीकेशन इन नर्सिंग इज लिमिटलेस, ठीक है।
जेनेटिक्स का नॉलेज रखना या जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करना नर्सिंग फील्ड में वो कैसा है, वो लिमिटलेस है। ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे नर्सिंग फील्ड का कोई लिमिट नहीं है, बहुत वास्ट फील्ड है, उसी तरह से जेनेटिक्स का स्टडी करना नर्सिंग फील्ड में या जेनेटिक्स प्रैक्टिस इन दी जेनेटिक नर्सिंग प्रैक्टिस फॉर दी नर्सेस, ये सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटलेस है, मीन्स इसका कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फोर्समैन नर्सिंग कैन इग्नोर जेनेटिक्स नो लॉन्गर, द टाइम फॉर मीनिंगफुल एक्शन इज नाउ। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू फोर्समैन नर्सिंग फील्ड में अब जेनेटिक्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमने पढ़ा सेवरल ईयर्स तक जेनेटिक्स जो था नर्सिंग फील्ड में वो छुपा हुआ था, उसको उतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पाया। बट अभी जिस तरह का सिचुएशन, अभी जो टाइम है इन द 21st सेंचुरी, नर्सिंग फील्ड में जेनेटिक्स को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अभी टाइम आ चुका है कि इसके लिए मीनिंगफुल एक्शंस लिया जाए और नर्सिंग फील्ड में जेनेटिक्स को भी एक प्रॉपर इम्पोर्टेंस दिया जाए, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट कोर्स बनाए जाए। ठीक है, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज बनाए जाए, जिससे क्या होगा, जेनेटिक फील्ड में इम्प्रूवमेंट होगा। नर्सेज भी जेनेटिक्स में प्रॉपरली जेनेटिक्स फील्ड में प्रॉपरली प्रोफेशनल्स एज अ प्रोफेशनल्स वर्क कर सकेंगी। Next, so these were the scopes of genetic nursing. Next we are going to study about the historical milestones. Okay, so from where the genetic nursing is origin, that we have to study. So historical milestone, nurses have been involved in managing genetic information since 1960s. Okay, नर्सेज जो है वो इन्वॉल्व थी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, कब से, 1960s से। व्हेन नर्सेज वर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू चिल्ड्रन विद जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। उस टाइम पर क्या होता था, नर्सेज चिल्ड्रंस को एज वेल एज उनके फैमिली मेम्बर्स को जेनेटिक डिसऑर्डर से प्रिवेंट करने के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। ठीक है, फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स ऑफ जेनेटिक्स नर्सिंग प्रैक्टिस। कुछ ऐसे माइलस्टोन्स है इन द हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स, सम माइलस्टोन्स आर देयर from which we can know from where this genetic nursing practice has been recognized. So in 1960s, nurses publishing about the nurses role in genetics and conducting genetics research. 1960s में क्या होता था, नर्सेस जो भी रिसर्च की थी, ठीक है, नर्सेस ने रिसर्च किया था जेनेटिक्स के ऊपर, कुछ जेनेटिक्स रिसर्च कंडक्ट किए थे। ठीक, और उनके जो रिसर्च हैं वो पब्लिश हुए थे इन 1960s। ठीक, फिर 1984 में क्या हुआ, जेनेटिक्स नर्सिंग नेटवर्क वॉज फॉर्म्ड विथ लेटर बिकेम ISONG. That means ISONG, its full form is International Society of Nurses in Genetics. ठीक है, जेनेटिक नर्सिंग नेटवर्क का जब फॉर्मेशन हुआ, ठीक, इसके बाद ये जेनेटिक नर्सिंग नेटवर्क किसमें वो चेंज हो गया, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नर्सेज इन जेनेटिक्स। ठीक है, फिर 1988 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ nurses in genetics was formed in 1988 which promoted genetic nursing practice and development credentialing process for genetic nurses. ठीक, 1988 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नर्सेस इन जेनेटिक्स का फॉर्मेशन हुआ और जब ये फॉर्म हुआ इसके बाद क्या हुआ, जेनेटिक नर्सिंग प्रैक्टिस को प्रमोट किया गया। ठीक, नर्सिंग फील्ड में भी जेनेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल आइडेंटिफाई हुआ और इसको प्रमोट किया गया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, इसको प्रमोट करने के बाद क्रीडेंशियलिंग प्रोसेस फॉर्म किए गए फॉर जेनेटिक नर्सेस। क्रीडेंशियलिंग प्रोसेस मीन्स एक ऐसा ऑफिशियल प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, कोई भी एक ऐसा प्रोफेशन या फिर कोई भी एक ऐसा प्रोफेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसमें जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, ठीक है, जैसे नर्सिंग फील्ड में नर्सेस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आइडेंटिफाई किया गया कि जेनेटिक्स का स्टडी करने के लिए या जेनेटिक नर्स एज अ प्रोफेशन बनाने के लिए। ठीक है, जेनेटिक नर्सिंग प्रैक्टिस दैट मीन्स एक प्रोफेशन बनाने के लिए, जैसे BSc नर्सिंग क्या है, एक प्रोफेशन कोर्स है। ठीक है, नर्सिंग क्या है, एक प्रोफेशन है। उसी तरह से जेनेटिक नर्सेज या जेनेटिक नर्सिंग प्रैक्टिस को भी एक प्रोफेशन बनाने के लिए कि नर्सेज जेनेटिक प्रैक्टिस के ऊपर
स्टडी कर सके या कोर्स कर सके जिससे वो एक प्रोफेशनल जेनेटिक नर्स कहला सके। ठीक, इसके लिए प्रोसेस के थ्रू, दैट मीन्स कुछ ऑफिशियल प्रोसेस के थ्रू लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है या किसी प्रोफेशन को अथॉरिटी या फिर पावर दिया जाता है कि अब वो एक प्रोफेशन के जैसा वर्क कर सकते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रीडेंशियलिंग प्रोसेस। दैट मीन्स किसी भी कोर्स को या किसी भी प्रोफेशन को आइडेंटिफाई करके उसको लाइसेंस प्रोवाइड करना या ऑथराइज्ड करना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रीडेंशियलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो 1988 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नर्सेज इन जेनेटिक्स फॉर्म हुआ और इसके फॉर्मेशन के बाद जेनेटिक नर्सिंग प्रैक्टिस को प्रमोट किया गया। उसको प्रमोट करने के बाद क्रीडेंशियलिंग प्रोसेस के थ्रू जेनेटिक नर्सेस एक प्रोफेशनल कोर्स बनाया गया। नेक्स्ट, इन 1997 जेनेटिक्स नर्सिंग वॉज डेजिग्नेटेड एज एन ऑफिशियल नर्सिंग स्पेशलिटी बाय अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन। सो इन 1997 क्या हुआ? अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन ने, ठीक है, जेनेटिक नर्सिंग को एक डेजिग्नेशन प्रोवाइड किया गया। ठीक, और इस डेजिग्नेशन में ऑफिशियल नर्सिंग स्पेशलिटी बनाया गया। ठीक है, ऑफिशियल नर्सिंग स्पेशलिटी का एक डेजिग्नेशन प्रोवाइड किया टू हुम? टू द जेनेटिक नर्सेस। ओके, नेक्स्ट, in 1998 statement on the scope and standards of genetics clinical nursing practice was published by ISONG, that means International Society of Nurses in Genetics, and American Nurses Association, that means in 1998 एक statement बनाया गया on the scope and standards of genetics, ठीक है, for clinical nursing practice। ठीक, that means नर्सेज जो है वो क्लिनिकल, ठीक है, इन क्लिनिकल साइट में भी एज अ जेनेटिक क्लिनिकल नर्स, ठीक है, जेनेटिक क्लिनिकल नर्स वो एज अ जेनेटिक क्लिनिकल नर्स वो क्लिनिकल सेटिंग्स में भी प्रैक्टिस कर सकती है। इस तरह का स्कोप एंड स्टैंडर्ड्स बनाया गया। ठीक, 2001 में, इन 2001 क्रीडेंशियलिंग ऑफ द फर्स्ट जेनेटिक्स एडवांस्ड प्रैक्टिस नर्सेस वॉज फॉर्म्ड। ओके, APNG, दैट मीन्स जेनेटिक्स एडवांस्ड प्रैक्टिस नर्सेस। 2001 में क्रीडेंशियलिंग, दैट मीन्स ऑथराइज्ड, एक प्रोसेस के थ्रू एक ऑथोरिटी या एक डेजिग्नेशन प्रोवाइड किया गया। किसको? एक रिकॉग्नाइजेशन मिला एज अ प्रोफेशन। किसको? जेनेटिक्स एडवांस्ड प्रैक्टिस नर्सेस। दैट मीन्स अब जेनेटिक फील्ड में भी नर्सेस एज अ प्रोफेशन वर्क कर सकती है या कुछ ऐसा कोर्सेस कर सकती है जिसका नाम है जेनेटिक्स एडवांस्ड प्रैक्टिस नर्सेस। ओके, नेक्स्ट, 2002 GNCC गोस ऑनलाइन। GNCC, दैट मीन्स जेनेटिक नर्सिंग क्रीडेंशियलिंग कमीशन। GNCC, दैट मीन्स जेनेटिक नर्सिंग credentialing commission. Okay, it was going online at www.geneticnurse.com and they have developed a logo and became incorporated. So in 2002 this genetic nursing credentialing commission has been made a authoritative body and they have developed a logo and became incorporated. Next, again in 2002 GCN, that means genetic clinical nurse credential is the first offered by GNCC. Okay, in 2002 the genetic clinical nurse, it is one kind of the profession which was developed or one kind of the nursing field. The genetic clinical nurse, it was recognized as one kind of the profession and it was credential in by the GNCC. that means genetic clinical nurse को भी एक licensed provide हुआ, एक एज अ प्रोफेशन उसको रिकॉग्नाइज किया गया और ये ऑफ़र किया गया किसके द्वारा? GNCC, दैट मीन्स जेनेटिक नर्सिंग क्रीडेंशियलिंग कमीशन के द्वारा जेनेटिक क्लिनिकल नर्स को एक एज अ प्रोफेशन रिकॉग्नाइज किया गया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। Thank you. I hope you have understood the scope of genetic nursing and historical milestones in genetics nursing practice. If any doubt is there, you can clear your doubts, okay, with me personally. Next, take precautions from COVID-19. Stay safe and stay healthy. Thank you.